Basic conditions of learning: readiness, maturation, motivation, attention, task and methods. B3. अधिगम की मूल शर्तें: तत्परता, परिपक्वता, प्रेरणा, परिपक्वता, ध्यान, कार्य और विधियां. Basic conditions of learning. अधिगम की मूल शर्तें. Learning is possible under certain desirable conditions, such as physical, psychological or sociological. अधिगम कुछ वांछनीय परिस्थितियों में संभव है, जैसे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिस्थितियां. Gant 1985 describes two different external types of conditions that exist in learning, internal and. गगने 1985 अधिगम में मौजूद दो प्रकार की बाह्य परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, आंतरिक और. Internal conditions, capabilities that already exist in a learner before any new learning begins make up the internal conditions necessary for learning. आंतरिक परिस्थितियां, क्षमताएं जो किसी विद्यार्थी में किसी नए अधिगम की शुरुआत से पहले मौजूद होती हैं, अधिगम के लिए आवश्यक आंतरिक परिस्थितियां बनाती हैं. External conditions include different stimuluses that exist outside the learner, such as the environment, the teacher, and the learning situation. बाह्य परिस्थितियों में विभिन्न उत्तेजनाएं शामिल होती हैं, जो विद्यार्थी के बाहर मौजूद होती हैं, जैसे पर्यावरण, शिक्षक और अधिगम की स्थिति. 1. Readiness, तत्परता. 2. Maturation, परिपक्वता. 3. Motivation, प्रेरणा. 4. Task and methods, कार्य और विधियां. 1. Readiness, तत्परता. Fire readiness is the state of being prepared to act. An example of readiness is the state of a girl well prepared to go on her first camping trip. तत्परता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई क्रियाशील होने के लिए तैयार हो. तत्परता का उदाहरण है एक लड़की का अपने पहले कैंपिंग ट्रिप के लिए पूरी तरह तैयार होना. Fire, it points out that one learns only when he is physically and mentally ready for it. In other words, preparatory set on the part of the organism is an important condition for learning. यह इंगित करता है कि कोई केवल तभी सीखता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है. दूसरे शब्दों में, जीव के हिस्से पर तैयारी की स्थिति अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है. लॉ ऑफ रेडीनेस बाय एल थॉर्नडाइक. एल थॉर्नडाइक द्वारा तत्परता का नियम. No entry sign when the organism is ready to do some work, the act of doing is satisfying, and not doing it is annoying. जब जीव किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, तो उसे करना संतोषजनक होता है और न करना कष्टकारी. No entry sign when he does not want to work, forcing him to work is dissatisfying. जब वह काम नहीं करना चाहता, उसे जबरन काम कराना असंतोषजनक होता है. No entry sign if students are not willing to learn, forcing them to learn will cause dissatisfaction and annoyance. यदि विद्यार्थी सीखने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें जबरन सीखने के लिए प्रेरित करना असंतोष और कष्ट पैदा करेगा. Learning readiness characteristics of students. विद्यार्थियों की सीखने की तत्परता की विशेषताएं. 1. Attention span, ध्यान की अवधि. Attention span refers to the length of time that a student can maintain focus on a particular task or activity. Students with a long attention span are better able to concentrate on tasks for longer periods. In contrast, students with a short attention span may struggle to remain focused for extended periods. 2. ध्यान की अवधि उस समय को कहते हैं जिस दौरान विद्यार्थी किसी विशेष कार्य या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित रख सकता है. जिन छात्रों की ध्यान अवधि लंबी होती है, वे लंबे समय तक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. इसके विपरीत, जिनकी ध्यान अवधि कम होती है, उन्हें लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है. 3. Memory, स्मृति. Memory refers to a student's ability to retain and recall information. Students with strong memory skills are better able to learn and retain new information, whereas students with weaker memory skills may struggle to recall information that they have learned. 4. स्मृति उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी जानकारी को संजो सकते हैं और याद रख सकते हैं. जिन छात्रों की स्मृति मजबूत होती है, वे नई जानकारी को बेहतर सीख और याद रख सकते हैं, जबकि कमजोर स्मृति वाले छात्र सीखी गई जानकारी को याद रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं. 5. Motivation, प्रेरणा. Motivation refers to a student's desire or drive to learn. Students who are highly motivated are more likely to engage in learning activities and persist in the face of challenges. In contrast, students who lack motivation may struggle to engage in learning activities.
6. प्रेरणा उस इच्छा या प्रेरक शक्ति को कहते हैं जो विद्यार्थी में सीखने की होती है। जो विद्यार्थी अत्यधिक प्रेरित होते हैं, वे सीखने की गतिविधियों में अधिक भाग लेते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके विपरीत, जिनमें प्रेरणा की कमी होती है, उन्हें सीखने की गतिविधियों में भाग लेने में कठिनाई होती है। 7. सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन। सेल्फ रेगुलेशन refers to a student's ability to manage their own behavior and emotions. Students with strong self-regulation skills are better able to control their impulses, manage their emotions, and persist in the face of challenges. 8. आत्मनियमन उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जिन छात्रों के आत्मनियमन कौशल मजबूत होते हैं, वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, भावनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 9. लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट refers to a student's ability to understand and use language. Students who have strong language skills are better able to comprehend instructions, communicate effectively, and engage in learning activities. 10. भाषा विकास उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी भाषा को समझते और उपयोग करते हैं। जिन छात्रों के भाषा कौशल मजबूत होते हैं, वे निर्देशों को बेहतर समझ सकते हैं, प्रभावी संवाद कर सकते हैं और सीखने की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। 11. सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक विकास। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट refers to a student's ability to manage their own emotions, empathize with others, and establish positive relationships. Students who have strong social emotional skills are better able to work collaboratively with others, manage conflict effectively, and navigate social situations. 12. सामाजिक भावनात्मक विकास उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं और सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। जिन छात्रों के सामाजिक भावनात्मक कौशल मजबूत हैं, वे दूसरों के साथ सहयोगपूर्वक काम कर सकते हैं, संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं। 13. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट refers to students' ability to think, reason, and problem solve. Students who have strong cognitive skills are better able to understand complex concepts, analyze information, and apply their knowledge to new situations. 14. संज्ञानात्मक विकास उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जिन छात्रों के संज्ञानात्मक कौशल मजबूत हैं, वे जटिल अवधारणाओं को बेहतर समझ सकते हैं, जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। 15. प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान। Prior knowledge refers to a student's existing knowledge and understanding of a subject. Students who have prior knowledge of a subject are better able to build on that knowledge and make connections between new and existing information. 16. पूर्व ज्ञान उस विद्यमान जानकारी और समझ को कहते हैं जो किसी विद्यार्थी के पास किसी विषय के बारे में पहले से मौजूद है। जिन छात्रों के पास किसी विषय का पूर्व ज्ञान होता है, वे उस ज्ञान पर बेहतर निर्माण कर सकते हैं और नई और पुरानी जानकारी के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं।